I've started the recording now. ठीक है. आपने सेशन अटेंड किया है मेरा पहले? Yes, no, no, first time. Okay, great. There are a few people who are writing yes, there are a few people who are writing no. Amazing. ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ. मेरा नाम है आंचल and I hope everyone is comfortable with Hindi and English both. First, we'll clear that. Are you all comfortable with Hindi and English? Or is there someone who does not understand Hindi or does not understand English? Yes. English is fine? ठीक है. मैं कोई भी एक लैंग्वेज पे रिलाई नहीं करने वाली हूँ. सो आई विल मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. एंड चैट सेक्शन तो हमेशा ही अवेलेबल है, तो इवन इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डेफिनेटली क्लियर दोज हियर. Good evening, everyone. This is Anchal. I am a marketing professional. So I work for a company called Stone Shippers, and there I work as a marketing manager. So that's my 9 to 5 job. Apart from that, I do take sessions like these where I help professionals and students like you to grow on LinkedIn, personal branding, resumes, career coaching, AI, and all of these topics. Apart from that, I'm also an author of 2 books, and like these are a few things about me. But if you will like connect over LinkedIn or any other platform, or start connecting with me even more, you will be able to understand how we can align better. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बनाने के ऊपर. तो हम उसमें ही स्टिक करेंगे. बट मैं पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि वेर आर यू बेस्ड आउट ऑफ? आई एम बेस्ड आउट ऑफ मुंबई. आई एम सिटिंग इन मुंबई राइट नाउ. आप लोग कहाँ से जुड़े हुए हैं साथ में? देखे हम, हमें अच्छा लगेगा. हैदराबाद, पंजाब, चंडीगढ़, झांसी, सोलापुर, रायपुर, राजस्थान, नोएडा. A lot of people from the north of India. How's the winters? ठंड कैसी है उधर? चिलिंग. चिलर. बहुत है. विंटर इज सो बैड. Terrible. I'm also about to go to North India in a few days. I'm excited to be a part of the winters. कभी कभी जाने वाले लोग excited ही होते हैं, जो हमेशा वहां पर रह रहे होते हैं उन्हें पता होता है. I originally hail from UP. Right now I'm established in Mumbai. So that's why that eagerness to go to North in winters. Great, great, great. I can see a lot of familiar names. So जो दिख रहा है बहुत सारे नाम जो मैंने पहले भी देखे हैं. Great to see you all. Before we start, I'll just quickly tell you कि हमारा फॉर्मेट कैसा होता है. चैट सेक्शन इज ऑलवेज अवेलेबल. मैं बीच बीच में बस चैट्स को बंद कर देती हूँ ताकि मुझसे कोई मैसेजेस मिस ना हो. सो हम थोड़ी देर अपना पीपीटी पे फोकस करेंगे, देन वी विल कम बैक टू द चैट सेक्शन एंड लाइक इट विल गो ऑन लाइक दैट. मेरा जो पीपीटी होने वाला है वो बहुत ही सिंपल होता है. A lot of bullet points and it is specially for me so that I do not miss on any of the points. तो वो मेरे लिए है स्पेशली. और जब हम बीच बीच में हम चाहेंगे तो फिर हम जाके प्लेटफॉर्म्स पे फोकस करेंगे so that we can go to LinkedIn, we can go to ChatGPT to understand the prompts and what kind of responses we can get. And there is also a हीरो टूल जो मेरा फेवरेट टूल है टू क्रिएट resumes. आई एम नॉट promoting any of the tools. There are so many tools available in the market. बट देन उस टूल पे भी हम आपको एक हैंड्स ऑन एक एग्जांपल दिखा सकते हैं. मैंने भी कुछ रेज्यूमेस, सैम्पल रेज्यूमेस बना के रखे हैं उधर. आई कैन शो इट टू यू डायरेक्टली ऑन द प्लेटफॉर्म. The session is around 90-minute session, so we will cover as much as we can. If you feel like you need a follow-up session or anything else, you can definitely get in touch with the support team. So I would request you to brief something about you. I just did that. I did brief about myself. तो
उसमें मैं फिर से टाइम नहीं जाया करूंगी. इफ यू वांट यू कैन सर्च मी ऑन लिंक्डइन एंड यू विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट मी एंड वी कैन आल्सो कनेक्ट ओवर देयर. A lot of people, especially like one person, is very much worried about my background. मैंने ये background रखा है because I find it is fascinating. The moment I'll start sharing my screen, you anyways are not going to see it on your full screen, so do not worry about it. ठीक है? Thank you so much, everyone. I will share my screen and then I will lead a confirmation in the chat section if you're able to see my screen and also hear me. उसके बाद फिर मैं chat को disable कर दूंगी थोड़ी देर के लिए. The session is going to be around ATS friendly resumes. ATS friendly resumes का मतलब हो गया no matter how good the resume is, no matter how good the CV is, if it is not passing through the ATS, it is not going to work, it is not going to reach the recruiters. So please confirm in the chat section if you're able to see my screen. Yes, the screen was visible. Am I visible? Am I audible? Everything is done, clear? Okay, so we'll start the session. I'll just close the chat section now. Thank you so much for everyone. Everyone, all the responses are amazing. Thank you. आप ऐसे ही active रहिए. Whatever your questions are, keep them ready. As soon as the chat section will be live, आप उसमें फिर से डाल सकते हैं. ठीक है? So I'll just disable the chat section right now, and I'll go back to the PPT. So ATS Friendly Resumes Creation, it's a 90-minute live practical workshop. So I am trying to keep it as practical as possible. We will be talking about 3 tools. हम 3 tools के बारे में बात करेंगे. First is ChatGPT. For your convenience, मैं ChatGPT का normal जो basic version है, which is not a plus, not a pro, not a go version, मैं वो use करूंगी ताकि आपके पास कोई बहाना ना रहे कि मेरे पास तो सब्सक्रिप्शन नहीं है. बेसिक टूल से क्या क्या चीजें हो सकती है हम वो देखेंगे. Hiration is one of those tools which I absolutely love for resume creation. और मैंने कुछ resumes बना के रखे हैं. LinkedIn, again, everyone knows about LinkedIn. It is great for professional collaboration, for professional networking, and not just for job search. So वो एक ओवरऑल प्लेटफॉर्म है. LinkedIn पे मेरे पहले भी बहुत सारे सेशंस हो चुके हैं. If you want those recordings, if you want those sessions, if you want again live sessions, you can definitely request to the support team. But I'm just telling you guys like ये चीजें हैं जो हम आज कवर करेंगे. Let's set the expectations. Today we are not guessing what works. हम बिल्कुल भी guess work नहीं करने वाले हैं कि क्या काम करता है क्या नहीं करता है. We are using the same tool that the recruiter or the job seeker are already using. As a person who works in marketing, as someone who belongs to a mid senior level, I do recruit also a lot of people in my own company. तो जब मैं उसको रिक्रूट भी करती हूँ किसी को एंड आई सी अ लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स ऑन अ डेली बेसिस, आई डू नो हाउ आवर माइंड आल्सो वर्क्स. तो हम कोई गेस वर्क नहीं कर रहे, हम एग्जैक्टली वही चीजें करने वाले हैं जो एक रिक्रूटर, जो एक एप्लीकेशन फिल्टर जो एक लगाते हैं हम, कि हम किन किन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं व्हेन वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, वो सब हम देखने वाले हैं. To make your resume ATS friendly as well as recruiter ready. The daily analogy, think of your resume is like a Google Maps location. If the address isn't clear, no matter how good the place is, people won't reach it. बहुत ही सिंपल है, एक बहुत ही छोटा एग्जांपल है जो मैं हमेशा देती हूँ कि नो मैटर कितनी भी खूबसूरत सी जगह हो, अगर जाने का रास्ता क्लियर नहीं है, सो इट डजंट मेक एनी सेंस. No matter how proficient you are, no matter how efficient you are, if you're not showcasing your skills, if you're not showcasing your profile in the best way possible, the talent will still be there. Like people will not be able to recruit you or like make the most out of you. और आप सभी वो opportunities रह जाएगी. The resume reality check, why resumes don't get shortlisted. कुछ कुछ reasons हैं जिनकी वजह से आपके resume शायद inbox तक पहुंच नहीं पाते हैं. ATS filters, ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं जो एप्लीकेशंस को स्कैन करते हैं. फॉर एन एग्जांपल, जब आप लिंक्डइन पर अप्लाई करते हैं,
रोल के बगल में लिखा होता है दैट दीज आर फॉर एग्जाम्पल अ 4 hours अगो पोस्टेड जॉब पोस्टिंग, 4 घंटे पहले पोस्ट किया गया है, और उसमें लिख कर आता है 100+ एप्लीकेंट्स, 150+ एप्लीकेंट्स ऑलरेडी अप्लाइड। नाउ डू यू रियली रियली फील कि वो सारे रेज्यूमेस को और सीवीज को एक बंदा उधर बैठ के, अ टीम ऑफ पीपल, ऐसे लोग बैठ के सच में वो रेज्यूमेस फिल्टर कर रहे हैं? नहीं। So what companies are doing right now, they have those ATS friend, like filters who will scan the resumes. अगर वो उन पर्टिकुलर क्राइटेरियाज को पास करता है तभी वो एप्लीकेशन एक नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग के पास जाता है। दिस इज व्हाट द फिल्टर इज। Recruiter review human eyes on shortlisted reviews resumes, like human eye has to be there, and then hiring manager is the final decision maker। ये 3 steps होते हैं। Critical insight is most rejections are happening even before your resume is reaching a human। जो हम मैंने अभी बात बोली कि एटीएस फिल्टर में ही 80% तक रेज्यूमेस रह जाते हैं, तो वो किसी इंसान तक पहुंचते ही नहीं है। And then if you have ever uploaded a photo on Instagram and got zero reach, it does not mean that the photo is bad. It means that it is not aligning with the algorithm। आपने कई बार देखा होगा कि on different different platforms there are different different timings on which you should post to get the maximum reach। वो नहीं किया, रॉन्ग टाइमिंग पे पोस्ट किया, सही से कैप्शन नहीं लिखा, कीवर्ड्स नहीं यूज किए, सो योर पोस्ट माइट नॉट रीच द राइट ऑडियंस। इट डज नॉट मीन दैट योर पोस्ट इज बैड। सिमिलरली, अगर आपका रेज्यूमे पहुंच नहीं रहा है डजेंट मीन इट इज बैड, इट जस्ट नीड सम करेक्शन, और वो हम आज देखेंगे। क्विक रियलिटी चेक एंड लेट्स गेट अ बिट इंटरैक्टिव। मैं वापस आ रही हूँ चैट सेक्शन में एंड आई एम अनेबलिंग इट फॉर माई सेल्फ। तो आप में से कितने सारे लोग हैं जो लिंक्डइन पर इजी एप्लीकेशन करते हैं, इजी अप्लाई करते हैं? कैन यू राइट अ येस और अ नो इफ यू नो व्हाट इजी अप्लाई इज? या आई कैन सी अ लॉट ऑफ yeses, yes। Great, 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 yeah। so you do use the easy apply feature, it is good। और कितने लोग ऐसे हैं जो कैनवा यूज करते हैं फॉर रेज्यूमे क्रिएशन? नो? मी? देर आर अ फ्यू पीपल, yes। कैनवा हैज अ लॉट ऑफ कूल टेम्पलेट्स, तो बहुत सारे लोग हैं जो रेज्यूमे के लिए भी कैनवा यूज करते हैं। आई कैन सी yes। ओके, ओके। Still not creating profile on LinkedIn? No, this is not done। If you are someone not just looking for a job but who is in a professional setup, no matter if you are an entrepreneur or a working professional or a student, be on LinkedIn। It is the most important platform ever, especially for people like us। और अगर आपको अभी भी लिंक्डइन की महानता के बारे में नहीं पता है, सो गो एंड वॉच द रिकॉर्डेड सेशन और जस्ट नो अबाउट लिंक्डइन। ओके, ग्रेट। I can see that there are people with career gaps also। Yes, yes, we will cover that, don't worry, don't worry। You are using chat gpt for resume create, amazing, that's great। ठीक है, तो मैं chat section बंद कर रही हूँ वापस से, and I'll get back to the PPT। तो ये 2 क्वेश्चंस हमने पूछे। वी सॉ एन ऑडियंस, मोस्टली आई फील 80% ऑफ देम आर डूइंग बोथ। द प्रॉब्लम इज लिंक्डइन सेंड्स योर रेज्यूमे टू एटीएस। आई गेव यू द एग्जाम्पल, द सेम एग्जाम्पल, कि आप लिंक्डइन पे अप्लाई करते हैं, आपको दिख भी जाता है। इफ यू हैव द लिंक्डइन प्रीमियम यू कैन ऑल्सो सी लाइक हाउ मेनी एप्लीकेंट्स एंड हाउ डू यू कैन कंपेयर विद दोज एप्लीकेंट्स। तो वो ऑफ कोर्स लिंक्डइन बैठ के खुद से फिल्टर नहीं कर रहा है, इट इज सेंडिंग इट टू द एटीएस सॉफ्टवेयर। Canva designs confuse ATS because it is design heavy। कैनवा में अगर आप जाते हैं, कलर्स बहुत सारे हैं, एलिमेंट्स होते हैं बहुत सारे, देर आर इमेजेस, देर आर सो मेनी स्टफ, एंड इट डेफिनेटली कंफ्यूजेस the filter, the ATS filter। Beautiful is not equals to readable for machines। Machines are simple। Even though machines are meant for complex problems, machine in itself is simple। उनको बहुत रोजी चीजें, बहुत कलरफुल, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें देने पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो डू नॉट फील लाइक एक बहुत ही सुंदर सा आपने टेम्पलेट यूज किया है तो वो बहुत अच्छा दिखेगा, देखने में हो सकता है बहुत सुंदर दिख रहा हो बट इट इज नॉट रीडेबल. How ATS actually works. This is very important. ATS works more like LinkedIn search than human reading. कैसे हम LinkedIn पर सर्च करते हैं, तो ह्यूमन रीडिंग इज स्टिल पॉसिबल बिकॉज वी कैन रीड कॉम्प्लेक्स स्टफ. हम जगह बना लेते हैं इवन दो वी हैव अ पेज, उसमें बहुत सारे डिजाइन हैं. आवर आईज विल स्टिल गो टू द वर्ड्स, our eyes will still be able to filter the words or see the words and we will be able to read those. बट एक मशीन को समझाना पड़ेगा, फिर वो गुम हो जाएगा उसमें कहीं ना कहीं. सेम थिंग पार्सिंग, टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट है आपका, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसमें से पहले टेक्स्ट निकालेगा, फिर मैच करेगा जॉब डिस्क्रिप्शन वर्सेस रेज्यूमे कीवर्ड्स. दैट इज व्हाई हम लोग ऐसा भी करते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी को दे देते हैं कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन है और इसके हिसाब से मेरा प्रोफाइल समरी बनाओ या मेरे रिज्यूमे को बेटर कर दो और ये सब चीजें. दैट इज लाइक मैचिंग so that your profile feels like the best fit for the job role. And ranking, scoring and prioritization कि क्या चीजें किस लेवल पर आएंगी, क्या पहले जाएगा, स्किल्स पहले जाएगा या एक्सपीरियंस या वो या एजुकेशनल एक्सपीरियंस या क्या चीजें कैसे हमें उसमें पुट अप करनी है सो दैट द बेस्ट सेक्शन गेट्स द मोस्ट अटेंशन, वो देखने के लिए. नाउ व्हेन टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट स्टेप which is again the most important, text extraction, because अगर यहीं पर फंस रहा है तो फिर it will not be able to reach the human eye. What ATS does is converts resume into plain text. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही छोटा सा आपको एग्जाम्पल लूं, अगर मैं सिर्फ ऐसा कॉपी कर लूं इतना पोर्शन और मैं कहीं पर पेस्ट करने जाऊं, बुलेट पॉइंट्स इधर से उधर हो जाएंगे, जो लाइन स्पेसिंग होती है इधर से उधर हो जाती है. इमेजिन यू शेयरिंग अ पीडीएफ वर्जन ऑफ योर रेज्यूमे एंड देन एक्सपेक्टिंग कि वो टेक्स्ट एज इट इज रीड हो जाए. नहीं होता है, वो ऑफ कोर्स फॉर्मेटिंग में इशू देता है. बट एटीएस का तो पहला ही काम है कि वो रेज्यूमे को प्लेन टेक्स्ट में करेगा, और अगर वही नहीं हो पाया तो फिर आपका रेज्यूमे इज अ वेस्ट. सो कन्वर्ट्स रेज्यूमे इनटू प्लेन टेक्स्ट, रीड्स कंटेंट linearly top to bottom. If your sentence is broken into two lines or multiple lines because of design, it will not be able to make sense out of the sentence. So इसके लिए it is easy and it is recommended to keep it as simple as possible. Fancy layouts break reading order. What I told you. Fancy बहुत रखेंगे तो वो reading complete नहीं हो पाएगी. Tables, text boxes, columns confuse it. The more the elements, the more confusion it creates. कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, मल्टीपल कॉलम्स बना देते हैं हम, कई बार ऐसा मैंने देखा है. स्किल्स के लिए इधर नीचे अलग सा कॉलम बना देंगे, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अलग सा लिख देंगे, फिर अचीवमेंट्स के लिए अलग ऐसा ट्रॉफी वाला आइकन बना के लिख देंगे. डजंट वर्क लाइक दैट. टेक्स्ट इन हेडर्स एंड फूटर्स, then graphics with text, complex tables does not work. The notepad test, if you copy your resume into a notepad and it looks messy, it means ATS will also be confused. जो मैंने चीजें आपको बताई, सेम पीडीएफ को आप कॉपी पेस्ट भी करेंगे कहीं पर, वर्ड में ही करके देख लीजिए, नोटपैड में करके देख लीजिए, नहीं होता है वैसा का वैसा वो पेस्ट. पहला हो गया पार्सिंग, टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन हो गया. सेकेंड इज मैचिंग जेडी वर्सेस रेज्यूमे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कितने सारे लोग हैं जो ऐसी गलती करते हैं कि हर प्रोफाइल के लिए, हर रोल के लिए वो सेम अपना रिज्यूमे डाल देते हैं. इट रियली डज नॉट वर्क लाइक दैट. हर रोल का जॉब डिस्क्रिप्शन इज डिफरेंट. योर प्रोफाइल इज नॉट meant to suit all the job descriptions. Your profile has to have some common, unique things in between so that it matches the job description and you come out as the best fit for the role. वो करना बहुत जरूरी है. इसीलिए जो आपके ऐसे टारगेट रोल्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप हर रोल के लिए एक अलग सा जेडी बनाइए. जेडी है, एक अलग सा रेज्यूमे भी बनाइए. रेज्यूमे बनाने का मतलब है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चेंज होगा,
वर्क एक्सपीरियंस नहीं चेंज होगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं चेंज होगा, वो तो स्टेगनेंट है। What will change is your summary, जो आपका summary होता है. What will change is your description, the way you are writing and the way you are expressing yourself, and maybe the skills. कि कुछ चीजों को ट्वीक करके अगर आप उसके डिफरेंट वर्जन्स बना के अप्लाई करेंगे, योर chances of getting shortlisted is even more, because then your profile will suit the job description. So ATS matches keywords exactly like LinkedIn search filters. जब भी ATS टूल होता है वो ऑलरेडी कीवर्ड्स को पिक कर लेता है उस रोल के लिए, और इफ वो कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ मैच हो रहा है, तो ही आपका रिज्यूमे आगे जाता है. Job description says digital marketing. Your resume says online promotion. Kind of it is same. You're promoting online via digital marketing, but the result is a mismatch because you're not using the exact same words. And fortunately, generative AI tools are able to help you out with those keywords जो आपको यूज करने हैं अपने रिज्यूमे में. तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा. नेवर एवर कॉपी पेस्ट द सेम रिज्यूमे एवरीवेयर, बिकॉज फिर रिस्पॉन्स नहीं आएगा. अप्लाई तो हो जाएगा बट रिस्पॉन्स नहीं आएगा. देन यू विल बी लाइक, पता नहीं क्यों नहीं रिस्पॉन्स आता है. सो डजंट वर्क. व्हाट डजंट वर्क इज यूजिंग सिनोनिम्स. डिजिटल मार्केटिंग है, कॉम्प्लेक्स करके या रोजी बना के उसको ऑनलाइन प्रमोशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है. उसको आप डिजिटल मार्केटिंग ही लिखिए. सम थिंग्स आर मेंट द वे इट हैज टू बी. उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होती है. क्रिएटिव जॉब टाइटल्स. कई बार ऐसा होता है, स्पेशली अभी एआई के टाइम में, हर चीज में लोग सोचते हैं कुछ एआई का एलिमेंट डाल दें. हर चीज में अगर नॉर्मल कैंपेन मैनेजर भी है तो लिख देंगे कैंपेन कैंपेन एनेबलिस्ट, एआई जनरलिस्ट, ऐसा कुछ तो वर्ड यूज कर लेते हैं जिसकी वजह से वो बहुत फैंसी, सुनने में अच्छा है बट पढ़ने में या उसको समझने में दिक्कत होती है. एंड स्पेशली दीज basic tools like the key tools, they will not be able to understand your resume. Abbreviations only. Shortcuts का जमाना नहीं है. It is fine to use the long words, the full forms of everything. It is pretty clear. Industry jargons. जैसे मार्केटिंग के ही कुछ टर्म्स ले ले अगर, इन टर्म्स ऑफ एनालिटिक्स कुछ यूज कर लिया, या फिर अगर आपको फॉर एग्जांपल क्लिक थ्रू रेट बोलना है, आप उसको सीटीआर बोल रहे हैं. इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, बट इंडस्ट्री जार्गन्स यूज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट विल नॉट बी एबल टू कैच इट. व्हाट वर्क्स, एग्जैक्ट जेडी लैंग्वेज. जेडी की लैंग्वेज में कैसा लिखा हुआ है, कैसे इंग्लिश यूज हो रही है, कौन से वर्ड्स यूज हो रहे हैं, दैट शुड मैच विद योर रेज्यूमे. स्टैंडर्ड टाइटल्स जो सबको समझ में आते हो, कैंपेन मैनेजर हो, मार्केटिंग मैनेजर हो, वही यूज करिए. उसमें कुछ अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है. फुल टर्म्स प्लस एक्रोनिम्स. फुल टर्म्स यूज करना है, एब्रिविएशंस पे नहीं जाना है. शॉर्टकट जीके नहीं लिखना है, जनरल नॉलेज लिखना है. वीपी नहीं लिखना है, वाइस प्रेसिडेंट लिखना है. इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फ्रेजेस, जो इंडस्ट्री में फ्रेजेस चल रहे हैं वही यूज करना है. ओल्ड स्कूल बन जाना है, जेंजी नहीं बनना है. डज दिस मेक सेंस? आई विल कम बैक टू यू नाउ. क्या मैं जो समझा रही हूँ, जो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, वो समझ में आ रहा है? मेकिंग सेंस? यस. यप 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 यस. ग्रेट. इफ यू विल सी वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द प्रेजेंटेशन. इसका मतलब ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मैक्सिमम टाइम आपसे बात करने में, आपसे क्वेरीज सॉल्व करवाने में और करने में, और प्रैक्टिकली टूल देखने में व्यतीत करूं, इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग थ्रू द प्रेजेंटेशन. बट माई प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो मेंट इन अ वे कि वो सबको इजीली समझ में आ जाए. ऐसा बुलेट पॉइंट्स ही रखा हुआ है, बहुत डिटेल्ड नहीं रखा है. पूर्णिमा जी, इफ यू रिक्वेस्ट द सपोर्ट टीम, यस. देखिए, मेरा स्टूडेंट्स के साथ में कुछ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पाता है, डायरेक्ट हम लोग का कॉन्वर्जेशन नहीं होते हैं. If you want the PPT, definitely raise a ticket or speak to the support team. If they say so, I will be more than happy to share the PPT because ये आपके लिए ही बनाया है. And do not use the same PPT again and again. और जिन्होंने मेरा लिंक्डइन मास्टर क्लास अटेंड किया उनको तो ये भी पता है कि मैं पीपीटी यूज भी नहीं करती. मैं सीधे लिंक्डइन पे जाती हूँ और प्रैक्टिकल प्रोफाइल समझाती हूँ पूरा.
तो बट फॉर दिस टॉपिक अ पीपीटी इज रिक्वायर्ड, तो इसके लिए फिर मैंने पीपीटी बना के इसमें बुलेट पॉइंट्स रखे हैं। इन कैनवा यस, आपके पास सिंपल फॉर्मेट्स है कैनवा में भी। आई एम सेइंग और टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कैनवा बिकॉज कैनवा पे लोग जाते ही फैंसी चीजों के लिए हैं। अगर आपने सीख लिया है और आप सिंपल चीजें ही यूज कर रहे हैं तो अच्छी बात है। बट कैनवा पे वो जो फैंसी फैंसी टेम्पलेट्स होते हैं, प्लीज उसको यूज मत करिएगा बिकॉज दोज विल नॉट सरपास द एटीएस। यस। ओके। डेफिनेटली यू कैन कीप योर रेज्यूमे एज सिंपल एज पॉसिबल। यस यस। मैं जो आपको रेज्यूमे दिखाने वाली हूँ ना, मैं आपको रेज्यूमे दिखाऊंगी और वापस आके आपसे पूछूंगी इतना सिंपल रेज्यूमे कहीं देखा है क्या। और मैं आपके सामने जीती जाती एग्जाम्पल हूँ। मेरा अभी का रोल भी, इफ यू गो टू माई लिंक्डइन यू विल सी लिंक्डइन हैज हेल्प्ड मी गेट दैट रोल। मतलब मैंने वो लिंक्डइन के वाया ही मुझे वो रोल मिला है। और this is a very live example where I have created my own resume and I have shared it with you guys. तो उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। I will show it to you. Just be a bit patient. मुझे वापस आके जानना था is everything okay या फिर मैं बस अपनी धुन में बोलती जा रही हूँ। It seems like everything is okay, so we will just resume with the presentation and then I'll come back to you all. चैट डिसेबल्ड हो चुका है, वापस आ जाते हैं। हमारा थर्ड स्टेप है रैंकिंग द स्कोर। 85% कीवर्ड्स प्लस एक्सपीरियंस अलाइन होता है तो स्ट्रॉन्ग मैच माना जाता है। 62% इज अ मॉडरेट मैच, लाइक सम कीवर्ड्स आर मिसिंग, सम कीवर्ड्स आर मैचिंग। अ वीक मैच इज 38% which has poor keyword alignment। जैसे लिंक्डइन पे हमें दिखता है टॉप एप्लीकेंट्स, आपको दिखता होगा, अगर आपने देखा है तो। नहीं है तो प्लीज प्रोफाइल बनाइए और जाकर इस चीज को भी एक्सप्लोर करिए। Just like LinkedIn shows top applicants, ATS decides who comes on top. Recruiters see top ranked resumes first. Obviously, is it is there in all the platforms, right? जितना भी सॉलिड आपका रिज्यूमे होगा उतना आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, आप उतना ही अच्छा रैंक करेंगे। इवन इफ यू आर द 149th पर्सन टू अप्लाई टू अ जॉब जिसमें 150 लोगों ने अप्लाई किया है, फिर भी आप टॉप एप्लीकेंट बन सकते हैं इफ योर रेज्यूमे इज स्ट्रॉन्ग। सो इट हैज दैट मच ऑफ पावर। तो अब उससे अंदाजा लगा लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ द की इनसाइट हियर इज एटीएस स्कोर्स resumes ऑटोमेटिकली। हायर द स्कोर हायर द विजिबिलिटी टू रिक्रूटर्स, जो हमने बात करी है। अभी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे स्ट्रक्चर, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीन ग्रैब। आपका रेज्यूमे आपके लिंक्डइन के प्रोफाइल के जैसा होना चाहिए। लिंक्डइन प्रोफाइल कैसा दिखता है शुरुआत में? बट ऑफलाइन एंड क्लियर। यस, लिंक्डइन इज ऑनलाइन बट योर रेज्यूमे इज एन ऑफलाइन वर्जन। तो उतना ही ऑफलाइन और उतना ही क्लियर, बिकॉज लिंक्डइन में आपके फोटोज बहुत है, मल्टीमीडिया बहुत कुछ होता है, बैनर्स है, प्रोफाइल पिक्चर्स है, इसमें जरूरत नहीं है। इट इज अ मोर क्लियर और लाइक क्लीनर वर्जन। फर्स्ट इज द हेडर सेक्शन वेयर यू हैव ऑल द बेसिक डिटेल्स। प्रोफेशनल समरी, आपका अबाउट सेक्शन होता है, आपका समरी होता है जो आपकी जेडी से मैच करेगा तो बहुत अच्छी बात है। स्किल सेक्शन होता है, एटीएस का पावर जोन। एटीएस का फर्स्ट काम ही होता है जॉब डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स को आपके रिज्यूमे के कीवर्ड से मैच करना। हो गया तो नथिंग लाइक इट। Experience is the quantified achievements, your work experience, your internships. If you are new, if you are already in the system for a longer time, there is no need to add internships। 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से उसके ऊपर अगर आप हैं तो आपके वर्क एक्सपीरियंस और आपकी कंपनी से इतने स्विच हो जाते हैं, यू डू नॉट हैव टू मेंशन योर इंटर्नशिप्स। किसी ने अगर डिटेल में पूछा आपसे बाद में तो यू कैन ऑलवेज शेयर। एजुकेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग, नथिंग फैंसी। नाउ हेडिंग एंड समरी डन राइट। प्लीज इस साइड पर थोड़ा ज्यादा अटेंशन दीजिएगा। काफी अच्छे से लिखने की कोशिश करी है। हेडर सेक्शन में इंक्लूड्स नेम, लार्ज एंड क्लियर, नाम क्लियर होना चाहिए। ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, लिंक्डइन यूआरएल एंड लोकेशन। बेसिक लोकेशन, कई लोग होते हैं, मैंने कई बार देखा है, फुल एड्रेस डाल के रखते हैं उधर। हमें आपको जब ज्वाइनिंग लेटर या ज्वाइनिंग किट देना होगा, वी विल आस्क फॉर योर अपडेटेड लोकेशन और योर करंट फुल लोकेशन। उधर इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। कीप इट वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर।
LinkedIn does not use icons for email, neither should your resume. कई बार ऐसा देखा है, वो ईमेल वाला आइकन बना के ईमेल एड्रेस लिखते हैं, लिंक्डइन का आइकन बना के लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक डालते हैं, फोन का वो डाल के व्हाट्सएप नंबर लिखते हैं। बेसिक है, लोकेशन पढ़ के समझ में आएगा, मुंबई इंडिया, उड़ीसा इंडिया, नोएडा यूपी, समझ में आएगा वो चीज पढ़ के। यू डू नॉट हैव टू लाइक पुट दोज आइकन्स, बिकॉज अगेन द मोर द एलिमेंट्स द मोर कंफ्यूजिंग इट इज। प्रोफेशनल समरी, हार्ड वर्किंग, पैशनेट प्रोफेशनल, अपने खुद के लिए इतने सारे एडजेक्टिव्स का यूज नहीं करना है, इट लुक्स वेरी बैड। गुड प्रोफाइल समरी क्या हो सकता है? डेटा एनालिस्ट विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस यूजिंग एसक्यूएल, एक्सेल एंड पावर बीआई टू एनालाइज बिजनेस डेटा। समझ में आ रहा है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, डेटा एनालिस्ट है, कौन कौन से टूल्स पे पकड़ है, ये चीजें ऑफ कोर्स स्किल्स में भी होंगी, बट पहले समरी में यही नजर में आएगा, तो इट इज गुड टू हैव सच काइंड ऑफ summary which is decent. If your LinkedIn headline and summary does not match your resume, ATS trust reduces. LinkedIn का हेडलाइन और समरी अगर मैच नहीं हो रहा है, LinkedIn पे there is हेडलाइन वाला फीचर, I do not know if I will have the time to showcase everything, but I will try to. तो LinkedIn में हेडलाइन होता है जो आप एक लाइन में लिखते हो, वो और आपके रेज्यूमे में अगर मैच नहीं है समरी में, बिकॉज समरी इज अगेन द फर्स्ट थिंग एनीवन विल लुक आफ्टर योर नेम, सम उसमें सेम नहीं हो रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं फिर एटीएस वोंट ट्रस्ट। और आपने सबने नोटिस किया होगा, वेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर अ रोल, अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस have made LinkedIn links compulsory or optional. They promote you sharing LinkedIn links because वो जाके मैप भी करते हैं। LinkedIn is a more like user friendly online version where a lot of multimedia platform, multimedia text and images and videos are there, तो उससे आपकी वर्सेटैलिटी नजर आती है। तो इसके लिए प्लीज try to map your resume as well as your LinkedIn। और ये अच्छी बात है because LinkedIn is your online portfolio and resume is your offline portfolio। Now skill section, the ATS power zone, use exact JD language and group skills logically। जो मैंने फिर से वही बात बोली कि स्किल्स और जेडी को तो मैच किया जाएगा। ये अगर हम ऐसा बहुत ही कॉमन सा लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कम्युनिकेशन, मार्केटिंग इज एन ओशन, इतना बड़ा ओशन है मार्केटिंग, यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग नोन इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, ट्रस्ट मी। इवन मी बीइंग like 6 years into the system, I do not know everything about marketing. It is practically थोड़ा कम possible, not impossible, but for me it is कम possible। So no, strategy आप सब कुछ नहीं जानते, you have to specify what communication, what kind of communication। Now what will be a good skill to mention? स्पेसिफिक एंड ग्रुप्ड। डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ हो गया। डिजिटल मार्केटिंग में आप लिख सकते हो फिर स्पेसिफिकली कि आपको एसईओ पता है, आपको गूगल एड्स, मेटा एड्स मैनेजर, कंटेंट स्ट्रेटजी, GA4 इज व्हाट, गूगल एनालिटिक्स 4। तो आपको ये चीजें पता है, तो आप स्पेसिफाई करके लिखो कि ये टूल्स आपको आते हैं। But even the recruiter will have some kind of confidence that yes, this person like knows about these kind of applications. Analytics, Google Analytics, Data Studio, A/B testing. ATS is not impressed by adjectives, it wants noun। स्पेसिफिक टूल्स, टेक्नोलॉजीज एंड मेथोडोलॉजीज, उसको स्पेसिफिकली जानना है कि आपको क्या क्या चीजें आती हैं, उसको अतिशोक्ति अलंकार यूज करने में और देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। It should match the JD keywords exactly, group by category and includes tools and certifications। Keywords, bullets and JD matching using LinkedIn to find keywords। इसमें एक बहुत ही इजी सा तरीका है, मैंने हमेशा बार बार आपको वही बोल रही हूँ मैं कि आपका लिंक्डइन और रेज्यूमे मैच होना चाहिए, देयर शुडंट बी अ प्रॉपर मिसमैच इन बोथ ऑफ देम। ओपन टारगेट जॉब, फाइंड द रोल ऑन लिंक्डइन। आप जॉब्स में गए, आपने लिंक्डइन पर जाके अपना परफेक्ट टारगेट रोल ढूंढ लिया। जैसे आप वो रोल ढूंढेंगे, यू विल बी एबल टू सी द जॉब डिस्क्रिप्शन, द स्किल्स एंड एवरीथिंग। एनालाइज द स्किल्स रिक्वायर्ड प्लस प्रिफर्ड स्किल्स लिस्टेड। Read the description, extract the exact phrases, and check for people also viewed similar roles and recurring words।
तो जब भी वो तो एक एक वेबसाइट का वो एक फंडा बन चुका है, लाइक इट ऑलवेज शोज यू recommendations. इफ यू कम अक्रॉस लाइक वन काइंड ऑफ जॉब रोल, यू विल ऑल्सो बी शोन सिमिलर काइंड ऑफ जॉब रोल्स. अगर आप ये देख रहे हो तो ऑल्सो व्यू. तो if you find one target role, you will be able to find like five more target roles, and five का फिर 50 500 whatever, because you have come across one. वो एक देखने के बाद ही आपको उससे रिलेटेड और उससे क्लोजली लाइक निटेड आपको और भी रोल्स दिखाई देने लगेंगे. फ्री इंटेलिजेंस इज लिंक्डइन इज शोइंग यू व्हाट रिक्रूटर expect for free, because those job postings are created by recruiters itself. उसमें hiring managers के नाम भी लिखे होते हैं. It is pretty easy to apply when the job posting is on LinkedIn, and you're able to also find कि मुझे इस रोल के लिए कैसा अपना रिज्यूमे को ट्वीक करना है या क्या मुझे बेटर करना है. Now, if you want to see this practically, I'll stop sharing my screen and I'll go to LinkedIn platform. Just give me a minute. और मैं उसके पहले इधर भी आती हूँ और मैं चैट में पूछने जा रही हूँ कि क्या अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है. जो मैंने दिखाया हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो वो, दैट इज वाई आई विल नाउ शेयर माई लिंक्डइन प्रोफाइल एंड आई विल शो यू कि जॉब्स में कैसा दिखाई देता है. But is everything else clear till now? You understood about ATS friendly resume, एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है. और लिंक्डइन दिखाने के बाद फिर मैं आपको अपना रिज्यूमे क्रिएशन प्लेटफॉर्म भी दिखाऊंगी. जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन, यस, एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ. हाँ जी, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज कर रही हूँ. मैक्सिमम मैं हिंदी यूज करूंगी, यस. ठीक है, ऑल रेडी लिंक्डइन पर जाके प्रैक्टिकली देखने के लिए. ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है. आई एम स्टॉपिंग द, नहीं, आई विल शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट. वेट, क्रोम is ready. Close the unwanted tabs. Okay, great. तो मैं JD is job description. I'll show it to you. Don't worry, Raghuvan ji. Don't worry. एक बार confirm करिएगा if you are able to see my LinkedIn profile. I'm sharing my screen right now. Just confirm. I'm looking at the chat section. Yes. Great, 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 great. Thank you so much. मैं close कर रही हूँ chat को. Thank you everyone. Okay, now let's go to LinkedIn. This is how the main page looks like. ऐसा main page दिख रहा है आपको. Now, जब हम jobs में जाते हैं तो based on my preferences है, तो मैंने जिस टाइप के searchings करे हुए हैं पहले, मुझे इधर topics for me ये सब दिखाई दे रहा है. एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये वाला रोल खोल रही हूँ. द मोमेंट आई ओपन दिस रोल, मुझे यहाँ पर जो मैं आपको बोल रही थी वो मुझे दिख रहा है, राइट. आई कैन सी कंपनी का नाम है, आई कैन सी दिस इज द रोल नेम. लोकेशन 3 weeks अगो, 3 हफ्ते पहले इसको पोस्ट किया गया है. ओवर 100 एप्लीकेंट्स ऑलरेडी. प्रमोटेड बाय हायरर, मतलब ये शायद एक्टिवली रिव्यू कर रहे हैं. शायद क्या है, दिख ही रहा है बिकॉज इट इज गेटिंग प्रमोटेड ऑल्सो. ऑन साइट है, फुल टाइम है, इजी अप्लाई पॉसिबल है. नाउ, ये सबसे अच्छा फीचर एक होता है कि पीपल यू कैन रीच आउट टू. आपने रेफरेंस का नाम तो सुना ही होगा. अगर आपके कनेक्शन में कोई ऐसा है जो इस कंपनी के लिए काम करता है तो वो यहाँ पर दिखता है लिंक्डइन पे. सो इफ यू वांट, you can go reach out to these people, go on show all and start texting them कि hi Rahul, I came across this role in your organization. I'm interested in applying for the role. Will you mind giving a referral for me? Or maybe like, will you mind referring me to the role or for the role? ऐसा कुछ करके आप उनको मैसेज करके लिख सकते हैं. अप्लाई तो आपको करना ही है. आप ये रेफरल का मैसेज लिख सकते हैं, अपना रेज्यूमे अटैच करके उनको भेज सकते हैं. गेटिंग हायर्ड और गेटिंग like an interview scheduled is far more easy when you are being referred. जब आपको कोई रेफर करता है उस किसी भी रोल के लिए तो आपका इंटरव्यू स्केड्यूल होना बहुत इजी हो जाता है, rather than ये 100 लोगों का या 150 या 200 लोगों का हिस्सा बनना नॉर्मल एप्लीकेशन का.
So you can also apply this trick. About the job, ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, these about the job is the job description. ये है जेडी, जो मैं बहुत देर से जेडी जेडी बोल रही थी, and there are a lot of people who are asking me what is a जेडी. ये है जॉब डिस्क्रिप्शन. इसमें अबाउट टाटा प्ले दिया हुआ है, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर दिया है. सो बेसिकली ये भी फिर भी आप मेंशन कर सकते हो, बिकॉज द टूल विल नो कि कंपनी किसके बारे में है एंड कंपनी को क्या प्रेफर करेंगे वो लोग, अगर आपका प्लेटफॉर्म हुआ, कैसा आपका बैकग्राउंड होगा तो. एंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर में ये है मेल. क्रिएटिव लीडर चाहिए, 5 साल प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी में, कंज्यूमर फेसिंग होना चाहिए या एंटरटेनमेंट ब्रांड्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए. की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारे हैं इधर. स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट है, कंटेंट क्रिएशन एंड मैनेजमेंट है, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स है. ये आपका डीप डाइव हो गया. दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, बट लाइक अ डीप डाइव इनटू इट. अभी सिंस मेरे पास लिंक्डइन प्रीमियम है, मुझे यहाँ पर कुछ और भी चीजें नजर आ रही हैं. हाउ यू कंपेयर विथ अदर एप्लीकेंट्स. मेरा प्रोफाइल तो लिंक्डइन देख ही रहा है क्योंकि मैं लॉग्ड इन हूँ, बट सिंस वहां पर दिख रहा है कि बहुत सारे एप्लीकेशंस हुए हैं, जो और भी एप्लीकेशंस हैं उनके साथ मैं कंपेयर कैसे कर रही हूँ. सो यहाँ पर दिख रहा है, ऊपर मुझे 100 दिख रहा था, एंड आई थिंक दिस ओवर 100 एप्लीकेंट्स बिकॉज वो उसके ऐसा ऐसा नहीं दिखाता है कि ओवर 700 एप्लीकेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट. आई थिंक इट गोज इन लाइक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड लाइक उसमें चलता है वो. बट नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 725 लोगों ने अप्लाई किया है. 725 applicants, 72 applicants in the past day. एक दिन में 72 applicants. Applicants के seniority level is 59% senior level, 16% entry level, 15% manager and 6% director level applicants. Educational level भी नजर आ रही है. तो अगर आपको ये सब चीजें दिख रही हैं, इट मीन्स यू विल बी एबल टू कंपेयर योर सेल्फ, राइट. कि मुझे तो सबसे ज्यादा ये देख के ऐसा लग रहा है कि इवन दो अगर वहां पर लिखा है कि 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर भी देर आर 16% पीपल हु आर स्टिल ट्राइंग देयर लक. मे बी देयर स्किल्स आर अमेजिंग, मे बी उन अच्छे कॉलेज से आए हैं वो, या फिर उनके पास ऐसे कुछ चीजें हैं जो एक्सपीरियंस को शायद सरपास कर जाए, तो इसलिए उन्होंने भी अप्लाई करके देख लिया. बट अगर एटीएस में ऐसा कुछ मेंशन होगा कि 5 साल से कम के एक्सपीरियंस वाले मतलब रेज्यूमेस देखने ही नहीं है, सो इट विल गो इन वेस्ट, बट इट्स फाइन. नाउ एक्सक्लूसिव जॉब सीकर इनसाइट्स अबाउट टाटा प्ले लिमिटेड. कंपनी के फोकस एरिया, हायरिंग एंड हेडकाउंट, ये हमें इनसाइडर मिल रहा है कंपनी का. सो यू कैन डिसाइड इफ इट इज रियली योर टारगेट कंपनी और नॉट. द लेटेस्ट हायरिंग ट्रेंड, कितने टोटल एम्प्लॉयज हैं इधर. मार्केटिंग में दिख रहा है कि 2 साल में ग्रोथ की जगह थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, कंपनी वाइड में लेकिन ग्रोथ हुआ है, ऑल ऑफ दैट. यहाँ पर साथ में कॉम्पिटिटर्स भी दिख रहे हैं, लेट वी नो कि कंपनी के बारे में क्या है. बिकॉज ऑफ कोर्स आपके हायरिंग मैनेजर्स वगैरह जो होते हैं, वो कंपनी के बारे में आपने रिसर्च कितनी की है वो भी जानना पसंद करते हैं. सो दैट इज वाई दिस विल बी लाइक एक्सट्रीमली हेल्पफुल. अबाउट द कंपनी हो गया, ट्रेंडिंग एम्प्लॉय कंटेंट हो गया, उस कंपनी के किसी ने अगर पोस्ट किया है, कुछ भी किया है, वो सब चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि क्या चीजें ट्रेंड कर रही हैं, एंड लाइक स्टफ लाइक दैट. तो यू आर एबल टू सी द बेसिक थिंग्स. अब जैसे जैसे आप इन टाइप के रोल्स देखेंगे, या आपका एक अल्गोरिथम सेट हो जाएगा कि मुझे ये टाइप के ही रोल चाहिए, द मोमेंट यू विल गो इन द जॉब सेक्शन, आपको भी आपके साइड में ऐसा दिखाई देगा कि टॉप पिक्स फॉर यू. सो इवन दो यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वन एंड हैव क्लिक्ड ऑन दिस थिंग, आपको इससे रिलेटेड भी जितने भी जॉब है वो दिखाई देते हैं, एंड दैट्स हाउ योर प्रोफाइल स्टार्ट्स बिल्डिंग अप. सो ये हो गया लिंक्डइन पे जॉब्स के बारे में बात. जो मैं आपको बोल रही थी कि हेडलाइन शुड मैच विद अ समरी, नॉट एग्जैक्टली लाइक समरी बट शुड हैव सम काइंड ऑफ कनेक्शन, इज दिस. ये जो आपका ये लाइन होता है, ये होता है लिंक्डइन पर हेडलाइन, इसको बोलते हैं हेडलाइन. हाउ आई नो दिस हेडलाइन? इफ आई क्लिक ऑन दिस पेंसिल साइन, यहाँ पर लिख कर आता है ये हेडलाइन है, और ये यहाँ पर नजर आता है. अगर मैं अपने रेज्यूमे में कुछ और ही बोल रही हूँ और हेडलाइन पे कुछ और ही है, मतलब कि वो मैच नहीं हो रहा है. So it is very very important that your LinkedIn headline should match with the
summary you have on your resume. अभी एक ट्रिक है, एक छोटा सा टिप समझ लीजिए इसको, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ because it is important again. Headline is one of the most important parts of your profile. Even though ये देखने में बहुत ही छोटा सा है, feels like ये नाम के नीचे कौन है उतना पढ़ता होगा, but I'll show you practically कि ये सबसे ज्यादा important मैं इसको क्यों बोल रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये एक पहला पोस्ट ही आ रहा है मेरे सामने, मुझे दिख रहा है यहाँ पर. द मोमेंट आई सी हियर, द फर्स्ट कॉमेंट राइट हियर इज हार्दिक देव. इनका यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है वो हेडलाइन थी, राइट. सो द मोमेंट समवन कम्स अक्रॉस योर प्रोफाइल, अगर आपने कहीं पर कमेंट भी किया है, आप मतलब किसी और के पोस्ट पे कमेंट करके भी आ रहे हो, तो द फर्स्ट थिंग पीपल विल सी अबाउट यू हियर आफ्टर योर नेम इज योर हेडलाइन. और अगर मैं यहाँ पर लोड मोर कमेंट्स पे क्लिक करती हूँ, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हार्दिक है, डेविड है, रिकी है, एलिसन है, इतने सारे लोग यहाँ पर हैं. बट जिसका मुझे यहाँ पर ये बहुत फैसिनेटिंग सा लगेगा हेडलाइन, मैं उसके प्रोफाइल पे भी जाके प्रोफाइल भी देखूंगी और उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेजूंगी, और मे बी हम फ्यूचर में कोलैबोरेट भी करेंगे. बिकॉज दिस हेडलाइन इज विजिबल एंड दिस in one line tells me about the person and if I would really want to connect to that person. सी सी CSM है, सास हॉस्पिटैलिटी मेंशन हुआ है, मे बी नॉट दिस, बट व्हेन आई सी कि यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव वीपी हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट मतलब एंड टू एंड देख रहे हैं, सब कुछ है, तो मैं इनसे कनेक्ट करना चाहूंगी. एक वो ह्यूमन नेचर है. तो दिस इज व्हाई इज द हेडलाइन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर प्रोफाइल. और ये हेडलाइन को ही हम डेवलप करके अपने रेज्यूमे के समरी में भी डालते हैं. Now I will get back to the presentation. I will stop sharing my screen और एक बार मैं चैट भी ओपन कर रही हूँ कि अभी आपने जो देखा, क्या वो उसका सेंस बना? Is that helpful? Did you like it? I will talk about the transition phase. Don't worry. Amazing. Yes. देखिए अभी तो मैं आपसे बस रैंडम ऐसा यस नो पूछ रही हूँ, और जितना मुझे समझ में आ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं कवर कर रही हूँ. लास्ट में हम अच्छा खासा टाइम रखेंगे Q&A के लिए. डू नॉट वरी अबाउट दैट. बट यस, डिड यू लाइक द जॉब सेक्शन? अच्छा लगा, समझ में आया, हेडलाइन से आप रिलेट कर पाए? ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू. ठीक है, अभी मैं चैट सेशन वापस से बंद करने से पहले ही एक बार प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ. थोड़ा सा ही बचा है पीपीटी, हम वो पोर्शंस कवर करेंगे बिकॉज हमें वहां पर बेस मिल रहा है, फिर प्रैक्टिकली जाकर देखेंगे. थैंक यू. ठीक है, अभी मैं शेयर कर रही हूँ अपना स्क्रीन एंड जस्ट कंफर्म वंस. हाँ, एक बार कंफर्म करिएगा प्लीज चैट में. आई यू एबल टू सी द पीपीटी अगेन? यस, थैंक यू. ओके, आई एम क्लोजिंग द चैट सेक्शन एज ऑफ नाउ. ठीक है, तो अभी हमने ये तो प्रैक्टिकली देख लिया, इस पे तो पूरा हमने बहुत अच्छा खासा टाइम बिताया बिकॉज अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ बुलेट पॉइंट फॉर्मूला, द फर्स्ट इज द एक्शन वर्ब एग्जीक्यूटेड. इसका अगर आप चाहिए तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि पीपीटी शेयर करवा दूं मैं, बट स्टिल अगर नहीं होता है, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल इशू है, तो इधर देख लीजिए पहले. बुलेट पॉइंट फॉर्मूला में पहला हो गया एक्शन वर्ब. वी नीड टू यूज वर्ड्स लाइक एग्जीक्यूटेड, एनालाइज्ड, मैनेज्ड, डेवलप्ड. इससे क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आप मैनेजर लेवल पर ही बैठे हो, आप अगर एग्जीक्यूटिव लेवल पर भी हो या आप फ्रेशर भी हो, इफ यू यूज वर्ड्स लाइक दिस, वो थोड़ा सा अथॉरिटेटिव लगता है, एक्शन टेकर लगता है. It feels like you have already invested some time in it. It feels like you are already doing something about it.
Even if you are an intern in an organization, if you have analyzed some data, उसका impact अलग पड़ता है. Managed, developed, executed, ये तो अलग अलग फिर verbs हो गए. Second thing is the task, what you actually did. There are a lot of people जो टास्क बता नहीं पाते हैं या समझा नहीं पाते हैं. You will have to figure out a way, maybe use ChatGPT for inspiration. बट आपका फॉर एग्जाम्पल अगर रोल है टू एनालाइज डेटा, यू कैन मेंशन कि कितने डेटा आप, कितना डेटा पॉइंट्स था आपके पास, आपने क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखा, आपने कौन सा फ्रेमवर्क यूज किया, आपके पास कितना ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा था. बिकॉज यू नो अबाउट द स्मार्ट फ्रेमवर्क, राइट. हर टॉपिक को, हर गोल्स को, हर डिस्क्रिप्शन को हमें स्मार्ट बनाना है. स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्सेसिबल, रिलायबल एंड टाइमली और टाइम बाउंड. तो ये जो स्मार्ट फ्रेमवर्क है वो मैं हर चीज में अप्लाई करती हूँ. मुझे अपने गोल्स लिखने हैं तो भी स्मार्ट बनाना है, खुद के लिए मुझे अपने लिए कुछ इंस्पिरेशन रखना है या अपने खुद के लिए गोल सेटिंग करनी है तो भी स्मार्ट होना चाहिए. जॉब डिस्क्रिप्शन भी लिख रहे हैं तो वो स्मार्ट होना चाहिए. दैट इज वाई जस्ट मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो एबल टू एक्सप्लेन योर टास्क इन अ वे कि वो इम्पैक्टफुल लग रहा है. टूल्स, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स, मेथोडोलॉजीज. टूल्स आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. आप सेल्स फोर्स पे काम कर रहे हो तो सेल्स फोर्स लिखो, जीरा लिखो. देर आर सो मेनी अदर एआई टूल्स जो आप यूज कर सकते हैं, नोटबुक एलएम, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, बेसिक पावर पॉइंट, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट, एवरीवन नोज. आई एम नॉट सेइंग कि मेंशन नहीं करना है, अगर वो आ रहा है, आपने सिर्फ अभी वही यूज किया है, लिखिए. बट मैं इस पॉइंट पे स्किल्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं लिखूंगी, बिकॉज आई हैव सो मेनी अदर बेटर टूल्स टू शो. और मुझे पता है कि उन टूल से मुझे बेटर इम्पैक्ट पड़ेगा या मेरे को अच्छा विजिबिलिटी मिलेगा, बिकॉज आई हैव यूज्ड मोर कॉम्प्लेक्स टूल्स. ऑलवेज मेंशन टूल्स. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, अगर ईमेल मार्केटिंग की बात करें, कोई मेल चिम्प यूज नहीं कर रहा है, हबस्पॉट यूज कर रहा है, कोई बात नहीं है. अगर आपको जहाँ कंपनी में आप स्विच कर रहे हैं वहां पर हबस्पॉट अगर यूज होता है, आपने मेल चिम्प यूज किया है, तो वो भी समझेंगे कि अगर आपको मेल चिम्प आता है तो आप ये भी सीख लोगे. बिकॉज द आइडिया बिहाइंड इट इज सेम. सब्जेक्ट लाइन वैसे ही होने वाला है, बॉडी वैसे ही होने वाला है, एबी टेस्टिंग वैसे ही होने वाला है, बेसिक आइडिया तो सेम रहेगा ना, बस वो टूल इंटरफेस वगैरह चेंज हो जाएगा. ऑलवेज मेंशन द टूल, बिकॉज वो आपका एक्सपर्टीज बताता है. एंड द रिजल्ट, डू नॉट ओनली टेल अबाउट आपने किया क्या. योर efforts will be in vain if there are no results. So always focus on the results also, कि result क्या निकल के आ रहा है आपके वो सब चीज काम करने से, या आपके प्रोफाइल में, आपके रोल में आपने ऐसा क्या किया जिससे एक इम्पैक्टफुल रिजल्ट निकल के आ रहा है. बिफोर, एक छोटा एग्जाम्पल है कि अगर बिफोर हम ये लिख रहे हैं कि वर्कड ऑन मार्केटिंग कैंपेन्स, आफ्टर वर्जन शुड बी executed digital marketing campaigns using Google Ads and Meta Ads, improving CTR by 28%. सिर्फ इतना लिख देना कि वर्कड ऑन मार्केटिंग कैंपेन्स, कुछ सेंस नहीं बन रहा कि किस चीज पे काम किया, क्या यूज किया, पहले क्या था, बाद में क्या हुआ. वेराज जब आप ये वाला लाइन यहाँ पर यूज करते हैं तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स यूज किए, मतलब आपने ऑनलाइन किया. आपने गूगल एड्स और मेटा एड्स यूज किया तो मतलब गूगल भी यूज हो गया, फेसबुक भी हो गया, इंस्टा भी हो गया, सब कवर हो गया. इम्प्रूविंग सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट होता है, क्लिक्स जो होते हैं उसको बोलते हैं. एंड द इम्प्रूव वॉज ऑफ 28%, मतलब अगर पहले 0 था तो अभी वो 28 है. बेसिक. तो इस लाइन में बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं. नाउ रिक्रूटर्स ट्रस्ट नंबर्स मोर देन द कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंटली आपने एक लाइन बोल दिया, दैट इज फाइन, बट एवरी वन इज इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द नंबर्स, एवरी वन इज इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द एक्चुअल इम्पैक्ट और द रिजल्ट. तो वो बहुत जरूरी है. नाउ यूजिंग चैट जीपीटी करेक्टली, rewrite this resume bullet to a ATS friendly, quantified and aligned with a digital marketing JD. Do not add false information. मेक सेंस. अगर आप चैट जीपीटी पे भी जाके लिखवाते हो तो आप उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दोगे कि हमारा रेज्यूमे आपने अटैच किया, अपना करंट रेज्यूमे,
लिख दिया कि री राइट दिस रेज्यूमे बुलेट टू बी एटीएस फ्रेंडली। बुलेट्स कहाँ कहाँ पर आते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन में आएंगे, शायद समरी में यूज कर रहे होंगे तो स्किल्स में, और ये सब जगहों पर। तो आपने बोला कि अभी एग्जिस्टिंग वाला रिज्यूमे मेरा ये है, और इसको आप एटीएस फ्रेंडली बनाना है, क्वांटिफाई करना है बिकॉज हमें स्मार्ट बनाना है, अलाइन विद अ डिजिटल मार्केटिंग जेडी, और वो जेडी भी आप शेयर कर दीजिए। एंड डू नॉट ऐड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ भी अपने से बना के या कुछ भी झूठा नहीं लिखना है, बिकॉज ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे इफ यू क्रैक एंड लाइक गो फॉर द इंटरव्यू राउंड, वो अच्छा नहीं दिखेगा। Critical rule: never let ChatGPT invent experience. You verify everything. ChatGPT is like Grammarly, helpful, not the author. Amazing. तो एक बहुत ही क्रिटिकल सा रूल है कि चैट जीपीटी को अगर आप कुछ भी बोलोगे ना, इट इज लाइक अ वेरी ओबीडियंट फ्रेंड। वो कभी आपको कुछ मना नहीं करता है, उसके पास नहीं होगा तो वो बना लेगा, लेकिन आपको मना नहीं करेगा, आपको निराश नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो सही इंफॉर्मेशन है, जो आपने बेस इंफॉर्मेशन दिया है, उस पे ही बिल्डअप हो। कुछ भी ज्यादा उसमें ऐड करके या कुछ भी नया री इन्वेंट नहीं करना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी कॉट इफ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट। और एग्जाम्पल के तौर पर ग्रामरली जैसा, ग्रामरली को मैं भी यूज करती हूँ फॉर माई यू नो ग्रामेटिकल करेक्शंस, या फिर अगर मुझे पैराफ्रेजिंग करनी है या कुछ करना है तो एज अ कंटेंट राइटर ऑल्सो तो यूज करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रामरली ऑथर बन गया, ऑथर इज स्टिल मी। और लाइक राइटर जो जिसने लिखा है, जिसका कंटेंट है, वो स्टिल मैं ही हूँ। मैंने सिर्फ ग्रामरली का यूज किया है टू बेटर माई कंटेंट और टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ हैविंग एनी काइंड ऑफ एरर्स। तो वो चीज के लिए हमने यूज किया है। नाउ 1 सेकेंड, थोड़ा ज्यादा आगे निकल गए हैं। वी कवर्ड दिस पार्ट एंड नाउ द लास्ट स्लाइड। सो ये हमने देख लिया कि चैट जीपीटी डजंट हैव टू री इन्वेंट एक्सपीरियंसेस। नाउ यूजिंग हायरेशन स्मार्टली, अभी मैं इस पे ही जाने वाली हूँ सीधे। सो व्हाट हायरेशन एक्चुअली डज, इट हैज द एटीएस स्कोर सिमुलेशन। वो आपको पूरा अच्छे से करके बताता है। इट हैज द चेकर, द एटीएस चेकर इन बिल्ट इन इटसेल्फ। तो वो वहां से देख के बता देता है इफ योर resume is going to pass the ATS filters or not. Keyword gap analysis: देयर इज अ फील्ड जहां पर आप जेडी को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और वो एनालाइज करके बता देता है कि कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और इफ योर रेज्यूमे इज लाइक कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स वाला थिंग। फॉर्मेटिंग चेक्स करके देते हैं, सेक्शन बाय सेक्शन फीडबैक मिल जाता है। हायरेशन इज नॉट अ जज, इट्स अ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट। रिपोर्ट है, वो जज नहीं कर रहा है, बट उसके आंसर्स को देखकर आप करेक्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स बेटर कर सकते हैं। Common mistakes to avoid is chasing 100% ATS score instead of relevance. Aim for 75 to 85 with genuine content. आपने ऊपर भी देखा कि जो पास होने का क्राइटेरिया था that was around 85%. No one is expecting you to bring a 100% ATS friendly resume. उतना हो गया तो समझ में आ जाएगा कि कुछ तो फेक है, या पूरे क्राइटेरियाज को मैच करने के लिए आपने कुछ तो उसमें खुद का ऐड कर दिया है। Make it very very realistic. Okay to have 75 to 85% rather than 100, और वो copied 100 हो। वो बोलते हैं ना, zero is better than copied 100. So that is the thing. Now resume plus LinkedIn alignment is very important. Again जो हमने बात किया कि recruiters check LinkedIn after ATS shortlisting, तो इसके लिए resume and LinkedIn must tell the same story. ये नहीं कि LinkedIn पे कुछ अलग ही कहानी चल रही है और resume पे कुछ अलग ही चल रहा है। It should definitely align together. Your resume doesn't need to impress everyone. It needs to pass system and speak clearly to one recruiter. Impress नहीं करना है. You definitely have to make sure that your resume is aligning with the job description. तो इसके सबसे पहला तो हो जाता है उन्हीं jobs पे apply करो जो relevant है. Over ambitious बन के उन jobs पर जाके apply नहीं करना है जो आपके प्रोफाइल से मैच नहीं कर रहे हैं। तो वो बहुत ज्यादा important है। कुछ ऊपर नीचे, कुछ कमी है, कुछ रह गया है, तो अपने रेज्यूमे को इम्प्रूव करके फिर हमें उस जॉब के लिए अप्लाई करना है। हमें उस रिक्रूटर को इम्प्रेस करना है, और
सिस्टम्स को पास करके आगे जाना है. वी डू नॉट हैव टू इम्प्रेस एवरीवन, तो दैट इज वाई कीप इट वेरी वेरी जेन्युइन एंड क्लियर. अभी लास्ट में एक चेकलिस्ट है जो हम अभी देखेंगे अभी प्रैक्टिकली, कि वन कॉलम लेआउट, एक कॉलम लेआउट होना चाहिए. डिफरेंट सेक्शंस अगल बगल बना के या चारों ऐसा कॉर्नर्स में सेक्शंस वगैरह बना के इट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज प्रॉपरली. स्टैंडर्ड हेडलाइंस, कई बार जैसे अब मैंने आपको अपना जॉब रोल्स का भी एक एग्जांपल दिया कि जनरलिस्ट यूज करते हैं, इम्प्लीमेंटर, एनालाइजर, ऐसा सब कुछ कुछ ऐसा वर्ड्स यूज करते हैं. फैंसी बनाने की जरूरत नहीं होती है. सेम गोज फॉर द हेडलाइंस ऑल्सो. वर्क एक्सपीरियंस को कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल बनाने की कोशिश की जाती है. डू नॉट डू दैट. JD keywords and skill, very very important. Quantified bullets, not simple bland bullets but some numbers. Clean file name, very important. When you are exporting your file, when you are downloading your resume or creating your resume into a PDF, simple आपका पूरा नाम is more than enough. Do not just put your first name because आपके नाम के multiple लोग हो सकते हैं and it might be a bit difficult to maybe find your resume. अगर किसी रिक्रूटर ने अपने सिस्टम में डाउनलोड किया है, they are preferably going to write your full name to search for the resume. So please just write your simple full name and get done with it. बीच में डैश, नंबर, पहला सरनेम बाद में फर्स्ट नेम, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है. कीप इट वेरी 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 सिंपल. PDF format unless .docx is requested. Unless वो document format में docx format में मांग रहे हैं, do not give a editable file. Always give PDF formats because एक तो वो edit नहीं करेंगे और वो जो आपका alignment होगा, जो आपका structure होगा, वो as it is रहता है PDF में. So do not give a Word doc unless or until वो they say that it is compulsory. तो दिस इज व्हाट द प्रेजेंटेशन वाज ऑल अबाउट. बेसिक चीजें हमने सब कवर करी हैं कि हमें स्क्रैच से कैसे बनाना है, क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है. नाउ आई विल गो टू द हायरेशन प्लेटफॉर्म. बट बिफोर दैट, सिंस वी आर ऑलरेडी लाइक इन द लास्ट लेग ऑफ द सेशन, मैं एक बार आपसे पूछना चाहूंगी वापस से चैट में आके, एंड चैट इज enabled नाउ. Is everything clear till now? Did you understand the PPT? Was it fine? Did it make sense? Yes, very informative. Glad. Yes, yes, yes. Great. Yes, I'm going for the practical example right now. I'm going for the Hiration platform right now. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay. I'm again sharing my Chrome. So just confirm once you're able to see the Chrome. आपको Chrome दिख रहा है, मेरा LinkedIn प्रोफाइल दिख रहा है, सेकंड टैब में हायरेशन दिख रहा है. Yeah. Yes, one column resume means I'll show it to you. I'm showing it to you right now. Send the link of what? Okay. There are a few people who are saying कि उनको कोई आइडिया नहीं है कि लिंक्डइन का प्रोफाइल कैसे बनाते हैं. um, we just have a total of 25 minutes left. उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए सब कुछ बताना. मैंने फिर भी आपको छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं बीच बीच में इन टर्म्स ऑफ हेडलाइंस एंड स्टफ. इफ यू रियली वांट if you really want someone to tell you about LinkedIn, please reach out to the support team. We definitely already have recordings available of my previous session जिसमें मैंने LinkedIn पूरा स्क्रैच से बताया है. एक प्रोफाइल फोटो से लेकर एंड तक लैंग्वेज कैसे अपडेट करना है वहां तक सब कुछ बताया है. And if you want a live session, definitely raise a ticket to the support team. Yes. Gayatri, you're asking for a free tool. See, unfortunately,
मेरे पास ऐसा कोई टूल नहीं है जो बहुत अमेजिंग काम करता है फ्री वर्जन में। हायरेशन बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में अवेलेबल होता है, इसके लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। उसमें डिफरेंट मतलब डिफरेंट टेम्पलेट्स है, इसलिए मैं दिखाना पसंद करूंगी आपको। लेकिन अगर आप वर्ड में भी जाएंगे, अपना नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आपको बहुत सारे सिंपल टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। राइट नाउ यू जस्ट फोकस ऑन द पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, लेटर यू कैन फिगर आउट द प्लेटफॉर्म ऑल्सो। ठीक है। सो इफ यू मे से आई विल प्रोसीड टू द हायरेशन प्लेटफॉर्म, और फिर एक बार उसको देख लेते हैं, देन आई विल कम बैक टू यू गाइस, और मैं हम लोग Q&A में फिर पूरा टाइम उसमें, लास्ट का जो 10 मिनट रहेगा पूरा Q&A करेंगे। सो लेट्स जस्ट गो एंड सी व्हाट हायरेशन इज एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू अपडेट। ग्रेट, आई एम क्लोजिंग द चैट सेक्शन नाउ। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो आई होप यू कैन सी द क्रोम। अभी यहाँ पर है हायरेशन का प्लेटफॉर्म। मैंने यहाँ पर कुछ कुछ चीजें बनाकर रखी हुई हैं। ओके, नाउ इफ आई क्लिक ऑन create new resume, I'm just showing it to you for an example कि यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स दिखाई दे रहे हैं। हमने डूज और डोंट्स दोनों के बारे में बात किया कि एक प्रोफाइल में होना क्या चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जब मैं बोल रही थी आपको कि इट हैज टू बी अ वन कॉलम थिंग, इट मीन्स ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ये क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं इसको, ये आइकन मैं खोल नहीं रही हूँ बिकॉज व्हेन आई ओपन इट इट विल क्रिएट अ वर्जन। यहाँ पर बहुत सारे आइकन्स यूज हुए हैं, ये पढ़ने में नहीं आते हैं। ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है। 3, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। इतने सारे कॉलम्स बन चुके हैं इधर, ऐसा पढ़ने में नहीं समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। इसको अगर आप कॉपी भी करोगे तो देयर माइट बी लाइक ह्यूज पॉसिबिलिटी कि ये स्किल्स भी कॉपी कर लेगा एक ही लाइन में। तो ये नहीं चलेगा। द सेम थिंग गोज फॉर हियर एज वेल, लाइक इधर सारे कॉलम्स बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट अलग से, दिस इज नॉट गोइंग टू बी रीडेबल। दिस इज स्टिल फाइन, बट स्टिल वो आइकन्स वगैरह नहीं चल रहे हैं। अगेन हियर इधर भी वही चीज हो रही है, इधर तो मतलब क्या ही बोले अभी। तो ये जो कुछ कुछ टेम्पलेट्स है ना, द रीजन आई एम शोइंग इट टू यू कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि ये पढ़ने में नहीं आता है। अभी की स्किल्स में क्या जरूरत थी इसको इतना फैंसी बनाने की? ऐसा बुलेट पॉइंट्स के अंदर की स्किल्स लिखने की नहीं जरूरत होता है। ऑनेस्टली देयर वाज अ टाइम जब मैं इस टाइप का कुछ बनाती थी, जब मैं ऐसा की स्किल्स मेंशन करती थी बिकॉज मुझे लगता था कि उस पर नजर जा रही है। बट देन जब स्लोली स्लोली मेरे को मालूम चला कि ऐसा भी कुछ होता है जहां पर आपके फिल्टरिंग हो रहे हैं रिज्यूमेस के, और पढ़ने में नहीं आएगा तो क्या फायदा इतना विजुअली अपीलिंग बनाने का। थिंग्स लाइक दिस डज नॉट वर्क। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मेट्स बिकॉज लाइन बाय लाइन सब कुछ है, नो कॉलम्स, नो फैंसीनेस, ऑल गुड। ये सब नहीं, ये लेटर पैड, नोट पैड, ये सब नहीं बनाना है हमें। सो लाइक दिस इज अ, आई थिंक दिस गिव्स अ फेयर आइडिया। नाउ आई विल गिव यू अ short example of how I created one of these resumes. This is actually a role which is available, so I'll show you to you. अगर मैं इसमें edit पे click करती हूँ, I'll show you the entire thing. Wait. नाम है, नॉर्मल डिटेल्स है यहाँ पर, बेसिक्स, एंड देन आई स्क्रॉल डाउन। ठीक है। द रीजन वाई आई एम शोइंग इट टू यू इज बिकॉज मैंने कोशिश करके थोड़ा प्रेजेंटेबल उसको बनाया है, इवन दो दिस इज जस्ट अ डमी। समरी में एक समरी लिखा, basis of the job description. I have also highlighted the key points. कई बार ऐसा होता है, एटीएस में तो ये हो जाएगा बिकॉज सब कुछ प्लेन है, देर इज नो एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग एंड एवरीथिंग, बट इवेंचुअली इट विल रीच अ ह्यूमन आई ऑल्सो। तो जब हम कर रहे हैं ना, तो जब हम अपना ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी नीड टू मेक श्योर कि वो जो तीनों पार्ट्स थे, फर्स्ट वॉज टेक्स्ट जहां पर एटीएस देखा जा रहा था कि वो पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेकेंड वॉज ह्यूमन आई,
It should look pleasing to the human eye also. थर्ड, हायरिंग मैनेजर। हायरिंग मैनेजर जो लास्ट स्टेप होगा वहां तक पहुंचने तक भी आपका रिज्यूमे दिखना अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए मैं बोल्ड यूज करती हूँ, मैं बेसिक फॉर्मेटिंग यूज करती हूँ, जिससे वो पढ़ने में भी आए, समझ में आए और अनरीडेबल भी ना बन जाए। तो समरी, ये एक हो गया पैराग्राफ जहां पर आपने समरी लिख दिया। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, वेरी बेसिक हेडलाइन, यू डू नॉट हैव टू मेक इट लाइक कुछ रोजी सा या कुछ अलग सा ही। अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखा, फुल टाइम कंपनी का नाम लिखा, अपना डेजिग्नेशन लिखा। यहाँ पर टच पॉइंट्स में मैंने इसको स्मार्ट बनाने की कोशिश करी है। जहाँ पर मैंने टीम को अगर लीड किया है तो मैंने वो भी लिखा है, डेवलप जो किया है, कोलैबोरेट किया है, इम्प्लीमेंटेड एआई, एंड द keywords are highlighted. Fortunately और unfortunately I did not had quantifiable numbers यहाँ पर दिखाने के लिए, बट फिर भी मैंने कोशिश किया है कि कुछ ना कुछ एडवर्ब्स यूज करके हो जाए। यहाँ पर टेन्योर लिख दिया तो वो भी क्लियर है। फिर एक ये कंपनी के बारे में यहाँ पर लिखा, फिर ये थर्ड कंपनी के बारे में लिखा, ऐसा ऐसा करके ये पूरा फॉर्मेट बना लिया। दिस इज ऑल माई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। इसमें एक, इवन दो आई हैव डन लाइक मल्टीपल इंटर्नशिप्स, मैंने एक इंटर्नशिप के बारे में लिखा है ये वाला, क्योंकि ये नाम सबको पता है और काफी ऐसा फेमस कंपनी है, तो अच्छा लगता है रिज्यूमे में जब ऐड होता है। तो इवन दो दिस इज जस्ट अ 2 month इंटर्नशिप, मैंने इसको भी यहाँ पर मेंशन किया है, एंड दिस वर्क्स। की स्किल्स, बेसिक, लाइन बाय लाइन। बुलेट्स में भी जब आप लिखते हैं ना तो एक तो स्पेस बहुत लेता है, और ऐसा रीड करना इज डिफिकल्ट। दिस रीडिंग हॉरिजॉन्टल इज मच मोर इजियर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक स्किल्स भी मेंशन किया है, और लैंग्वेज भी मैंने यहीं पर मेंशन कर दिया है, बिकॉज आई फेल्ट लाइक एक अलग से कॉलम बनाना विल बी टू मच। मेरे इस रोल के लिए दे वांटेड समवन हु इज अ पीपल्स पर्सन। आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स और मैं आपको सामने सामने दिखा रही हूँ। फॉर दिस रोल विच इज कॉल्ड एज, इसमें टॉप, इसमें आपको बाहर दिखा, आई थिंक इट वाज सम कम्युनिकेशन मैनेजर और समथिंग रिलेटेड टू लाइक पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशंस। इस रोल के लिए ये दिख रहा है इधर, पार्टनर कम्युनिकेशंस मैनेजर डिजिटल स्पेशलिस्ट। शोइंग दैट आई एम अ पीपल्स पर्सन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने यहाँ पर एक ये एक्स्ट्रा सेक्शन ऐड किया जिसमें मैंने लिखा लीडरशिप एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट। और इसमें मैंने जितने वर्कशॉप्स करवाए हैं, जो भी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज हुई है या कम्युनिटीज में पार्ट, मतलब ऐसा कुछ होस्ट किया है, नॉट दिस अटेंडी बट कुछ होस्ट किया है, तो वो सब मैंने यहाँ पर लिखा। बेस्ट मेंटर, मेरे खुद की कम्युनिटी एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई मेंशन ऑल ऑफ दैट ताकि मैं नजर आऊं कि मैं एक लीडरशिप या इम्पैक्टफुल पोजीशन पे रह चुकी हूँ, एंड आई विल बी अ ग्रेट एड ऑन। I told you about my books. So again, a person who is contesting for a communications role, अगर मैंने publications दिखा दिया, खुद के books दिखा दिए, so good. So मैंने यहाँ पे publications का भी लिख दिया है। लेटेस्ट सर्टिफिकेशन जो भी लेटेस्ट किया, पुराने वाले अपने माइक्रोसॉफ्ट के, या फिर पुराने से मतलब जो भी मैंने पहले किया है, स्कूल में किया है, कॉलेज में किया है, वो सब ना दिखाकर जो अभी इस रोल को रेलेवेंट था वो सब सर्टिफिकेशंस भी मैंने यहाँ पर डाल दिए अपने। एजुकेशन वाइज अभी मेरा डॉक्टरेट चल रहा है तो मैंने वो लिखा, इसके पहले एमबीए और उसके पहले बीबीए। फ्रेशर्स कैन राइट देयर 12th स्टैंडर्ड स्कूल और कॉलेज नेम ऑल्सो, बिकॉज उनके पास इतना कुछ नहीं होता है लिखने के लिए। सो आप अपना हायर सेकेंडरी का डाल दीजिए और फिर कॉलेज का डाल दीजिए, दैट इज ऑल्सो ग्रेट। अभी मेरे पास ऑलरेडी 3 कॉलेजेस थे डालने के लिए, तो मैंने अपना हायर सेकेंडरी हटा दिया था। सेम गोज फॉर हियर एज वेल। राइट नाउ मेरे पास 3 फुल टाइम कंपनीज हैं दिखाने के लिए, इसलिए मैंने अपने बाकी इंटर्नशिप्स हटा दिए। देयर माइट बी अ टाइम जब मेरे पास और भी ऐसे कंपनीज, जब मैं फर्दर स्विच करूंगी कभी, तो फिर मुझे शायद ये भी हटाने पड़ेगा, विच इज फाइन। चीजें आउटडेट होती हैं, इट इज ओके, वो समझना है अपने को। फ्यू पीपल वर आस्किंग अबाउट ईयर्स एंड एज गैप्स, और लाइक बीच में करियर गैप्स। ओके, यू डू नॉट हैव टू फूल अराउंड एनीवन। अगर वो करियर गैप आपके एजुकेशन से कवर हो रहा है, नथिंग लाइक दैट, आप यहाँ पर अपना कुछ कोर्स या कुछ एजुकेशन दिखा सकते हैं।
कोर्स इफ यू हैव द डिग्री और इफ यू हैव सर्टिफिकेशन, जस्टिफाई हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं. People know that you might be able, like you might be willing to switch the career or like change the field, या फिर कुछ पर्सनल रीजन है, मेडिकल इश्यूज है, कुछ भी है. इट इज ओके. नो वन इज गोना किल यू आस्किंग कि ये करियर गैप क्यों है. इसको एक्सेप्ट करना होगा, कर लेंगे. जहाँ के लिए आप नहीं बने होंगे वो नहीं करेंगे. इट इज ऑल सिंपल एंड इट इज ऑल एज इजी एज इट लुक्स. डू नॉट वरी अबाउट दैट. जस्ट जो आपके पास है, जो कंटेंट है, जो एक्सपीरियंस है, आप उसको अच्छे से अच्छा करते चले जाइए. नाउ व्हाई आई वाज सेइंग अबाउट दिस इज, यहाँ पर ये जॉब मैच का फीचर है. द मोमेंट यू पुट योर जेडी हियर, वो आपको दिखा देता है. अभी मुझे इसका एग्जैक्ट जेडी तो नहीं मिलेगा बिकॉज ये मैंने बहुत पहले बना के रखा था एक डमी. बट इफ आई गो टू जॉब्स एंड इफ आई सर्च समथिंग, फॉर एग्जाम्पल मुझे सबसे पहले यही दिख रहा है और मैं इसका ही जेडी अगर डाल दूं, पूरा डाल दे, देखते हैं क्या बोलते हैं. बाप रे. ठीक है, तो पूरा डाल के देख लेते हैं. आई जस्ट पेस्ट एंड क्लिक ऑन एनालाइज. मैंने ये रोल पहली बार देखा है, तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये कुछ अच्छा पकड़ में आएगा, लेकिन अगर आपको दिखाने के लिए कि ये प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है. पेस्टेड a job description here and let's see how it responds. 44% मैच ऑफ कोर्स. और यहाँ पे दिख भी रहा है कि क्रिटिकल स्किल्स जो है वो मिसिंग है. ये सारे स्किल्स में से कुछ नहीं है. ओनली 3 skills फाउंड इन माइन. सो अंडरस्टैंडेबल राइट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज. ना रेज्यूमे रिव्यू अगर करके देखें तो वो इन सब बेसिस पे आपको रेट भी करेगा. स्ट्रक्चर, स्किल, कॉन्टैक्ट इन्फो, रिवर्स क्रोनोलॉजी, बुलेट एनालिसिस, और मुझे मिल रहा है 100. इसके लिए क्योंकि एक स्ट्रक्चर जो है वो मैं फॉलो कर रही थी, तो इसके लिए मुझे फुल मार्क्स मिले हैं इसमें. AI assistant is enter the keyword and it will help you write bullets about it. जैसे यहाँ पर भी जब आप क्लिक करते हैं, हर सेक्शन में ये बल्ब का सिंबल है. एंड यू क्लिक ऑन इट, ये आपको टिप्स भी देते हैं कि क्या आप लिख सकते हैं, या इस ये वाला जो की स्किल्स का सेक्शन है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और वॉट एवर लाइक सम एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स. So this is how the platform works like. This was one of the resumes I created for dummy और आई होप इट वॉज हेल्पफुल. अभी ऑलरेडी 9:18 हो चुका है. सो आई विल स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन. आई क्विकली ड्रिंक वाटर. आई ओपन द चैट सेक्शन और मैं आपके क्वेश्चंस का वेट करूंगी और हम अब बातें करेंगे. सो आई ओपन द चैट. आई ग्रेट, थैंक यू. ओके, आई एम ऑन द चैट सेक्शन राइट नाउ. मैम लिंक्डइन प्रीमियम बाय करना नेसेसरी है? बिल्कुल भी नहीं है. अगेन इट्स एन एड ऑन. ऐसा कुछ भी फीचर नहीं है जो आपको रोक रहा है जॉब्स को अप्लाई करने से या आपके प्रोफाइल को विजिबल होने से. प्रीमियम डेफिनेटली एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू. आपको प्रीमियम मेंबर होने पे आप वो कंपैरिजन जो मैंने दिखाया वो आप कर सकते हो, वो सब दिख सकता है, बट नॉट द मोस्ट कंपल्सरी थिंग्स. सैम्पल ऑफ सीवी. सी मैंने फिर से वही चीज बोलूंगी, मैं मेरा डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं होता है स्टूडेंट्स के साथ में. इफ यू वांट द पीपीटी, इफ यू वांट द सैम्पल रिज्यूमे, इफ यू वांट एनीथिंग फ्रॉम मी, प्लीज गेट इन टच विद द सपोर्ट टीम. दे विल हेल्प बोथ ऑफ अस कनेक्ट, या फिर मुझसे वो लेके आपको ईमेल पे भेज देंगे. विच वेबसाइट इज गुड? इन माई नॉलेज बेस्ट वेबसाइट फॉर इट इज हायरेशन. मैंने खुद का दिखाया क्रिएट करके. तो
मुझे वो अच्छा लगता है प्लेटफॉर्म, बिकॉज इट हैज एवरीथिंग जो मुझे चाहिए। बाकी देर माइट बी अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, तो वो आप देख सकते हो। आपके पास वर्ड में भी बहुत ही इजी सा फीचर होता है जहाँ पर आप वर्ड में भी रेज्यूमेस बना सकते हैं। फॉर होटल इंडस्ट्री, इन it is not free, no, it's paid. Thank you. For hotel industry or operation domain in hospitality industry. Sorry, I didn't get your question. सिंपली गूगल पे जाकर अगर आप हायरेशन प्राइसिंग देखेंगे आपको दिख जाएगा। एटीएस स्कोर चेकर्स भी आते हैं, सबके सब गूगल पे नॉर्मली अवेलेबल हैं बहुत ही इजीली। गो टू योर एआई फ्रेंड, गो टू योर गूगल, स्टार्ट डूइंग योर ओन रिसर्च। मैं यहाँ पर 1.5 घंटे के टाइम में आपको हर एक चीज नहीं दिखा पाऊंगी, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू शो फ्रॉम द बेसिक्स कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। बट इफ यू वांट चेकर्स एंड प्राइसिंग प्लान्स एंड ऑल ऑफ दैट, प्लीज गूगल। एक गूगल सर्च में सब कुछ मिल जाएगा। देयर इज अ बिग बिग क्वेश्चन, मैं पढ़ना चाहूंगी और फिर उसको आंसर करूंगी। The professional with 2+ years of experience as an SEO executive wants to transition into a data and MIS executive role. What should they highlight in their resume, especially in the summary, headline, and role and responsibility, given that they have not worked formally in their domain? How can they present transferable skills without misrepresenting their experience? Perfect. Okay, Utkarsh. तो पहले तो जो basic information है that is not going to change. Your personal details and everything will remain the same. Your summary will match with the JD of the role you are trying to like transition in. ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे स्किल्स मैच ना करें बिकॉज यू आर ट्रांजिशनिंग, बट जितने मैच हो रहे हैं बी प्लेन अबाउट इट। Just go with the flow and like write your original skills as well as the skills you have developed to be capable to join that role, वो हो जाएगा। एक्सपीरियंस जो आपका रहा है अभी तक 2 साल का, उसको निगेट मत करिएगा, उसको जरूर मेंशन कर दीजिएगा। उससे कुछ नहीं होता। ऑफ कोर्स यू हैव, इट इज नॉट लाइक आपने कुछ नहीं किया है, आप उसको जीरो नहीं बता सकते। यू हैव वर्कड इन अ डिफरेंट डोमेन, इट इज ओके टू राइट दैट आउट। द ओनली थिंग कैन बी, ATS might not accept your resume sometimes because ATS is a machine, but आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। So if you have found a role that you are interested in and you know that you will be a good fit, एक तो जब आप जॉब्स में जाते हैं लिंक्डइन पर, वहां पर भी आपको हायरिंग मैनेजर का प्रोफाइल दिखता है। Ping that person, send an email on LinkedIn as well that you're interested in the role along with your resume. उस कंपनी की वेबसाइट पर जाके करियर्स में जाकर भी अप्लाई करिए। एंड देन लाइक you will have 3 touch points. You have applied via LinkedIn jobs. You have texted the hiring manager for the job opportunity. You have went to the website and applied via the careers page also. कोई रेफरल मिलता है तो वो भी अप्लाई करके देख लीजिए। ऑल ऑफ दिस आई एक्सप्लेन वेरी वेल इन द लिंक्डइन सेशन। अभी उतना टाइम नहीं हो पाएगा हमारे पास, बट ये कुछ कुछ चीजें हैं जहां पर आप मल्टीपल टच पॉइंट्स बना लेते हैं। सो इफ यू हैव लाइक मल्टीपल मल्टीपल टच पॉइंट्स, योर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सीन इंक्रीजेस। जैसे कि अगर आप सिर्फ एक जगह पर अप्लाई कर रहे हैं, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपका रिज्यूमे गेट्स लॉस्ट इन बिटवीन। बट फॉर एग्जाम्पल, देर इज अनदर पर्सन ऑल टुगेदर हु इज रिव्यूइंग द resumes via website, he or she might be able to spot you. So apply via various paths, via various ways, and that will definitely increase your probability of being seen or being visible. I am an accountant and also prepare MIS report. Then what would the title accountant come misreported? See, it is totally dependent on the role you're applying for. तो अभी आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ तो होगा, फिर अकाउंटेंट होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव होगा। आप जो रोल है वो मेंशन करिए। आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू चेंज योर रोल, यू हैव टू मेंशन द सेम रोल, जस्ट डू नॉट मेक इट फैंसी। आपके ज्वाइनिंग लेटर पे, आपके ऑफर लेटर पे जो रोल लिखा हुआ है वो सिंपल बेसिक ही होता है। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन वही फॉलो करते हैं, until unless it's a fancy startup.
तो वही मेंशन करिए, खुद से उसको फैंसी बनाने मत जाइए क्योंकि वो बैकफायर कर सकता है. Hydration is not my platform. I'm so sorry, Vijender ji, to disappoint you. And I'm so sorry to say कि आपके कमेंट्स भी बहुत अजीब आ रहे हैं. मतलब टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं आ रहे हैं. लिंक्डइन पर एक्टिव रहने का बेस्ट वे क्या है? इट्स नॉट इवन कंपल्सरी कि आप लिंक्डइन पर हमेशा एक्टिव रहे. क्रिएट अ डिसेंट बेसिक प्रोफाइल जो जिसमें सब चीजें कवर हो रही हैं. गो टू द प्लेटफॉर्म लाइक मे बी 3 times a week. कनेक्शंस बनाइए, जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर देख रहे हैं तो वो देखिए, कोलैबोरेशंस देखिए, पोस्ट कर लीजिए बीच बीच में, बट एटलीस्ट हैव योर प्रोफाइल रेडी. कैन आई मेक इट डोमेन स्पेसिफिक? यस, ऑफ कोर्स यू कैन. Internship from reputed company without stipend or any company with stipend, which is better. Otherwise, we have to do project in our MBA fourth semester as I am aiming for HR after 15 years of gap. Okay. If stipend is not something which is highly essential for you, go for a reputed company. Also, it depend करता है कि वहाँ का जॉब डिस्क्रिप्शन कैसा है, वो क्या सिखाने वाले हैं. तो इसके लिए गो फॉर द रोल. अगर आपको सच में सीखना है, स्टाइपेंड पे फोकस नहीं कर रहे हैं, चलेगा. कंपनी आपके वो रिज्यूमे में भी आएगा तो अच्छा रहेगा, बिकॉज पीपल विल नो दैट यू हैव लाइक रियली लर्न समथिंग फ्रॉम दैट कंपनी. तो वो एक बढ़िया एड ऑन हो जाता है. तो डेफिनेटली गो वेयर यू आर गेटिंग अ बेटर एक्सपोजर. सो मेनी मैसेजेस एंड मिस हो रहा है मेरे से अभी. There might be some fake postings, but not always, Hitesh ji. So definitely work on your resume. और जो मैंने अभी मल्टीपल टच पॉइंट्स बताए हैं उस पे प्लीज काम करिए. डेफिनेटली यू विल हियर बैक फ्रॉम द रिक्रूटर्स. मल्टीपल टच पॉइंट्स पे जाइए, कभी भी रेफरल ले लीजिए, हायरिंग मैनेजर को पिंग करिए, ईमेल करिए, सपोर्ट टीम को ईमेल करिए, करियर्स के वाया अप्लाई करिए, लिंक्डइन पे अप्लाई करिए, नौकरी पे ढूंढिए, उनको अप्लाई वहां से करिए. एक कंपनी के बहुत सारे प्रोफाइल्स होते हैं, लिंक्डइन पे होते हैं, नौकरी पे होते हैं, इंडीड पे होते हैं, वेबसाइट उनका क्रिएटेड होता है, हायरिंग मैनेजर से कॉन्टैक्ट्स होते हैं. और लिंक्डइन पर जाके उस कंपनी में काम करने वाले लोगों को ढूंढ के उनको पिंग करके रेफरल लीजिए. यू विल डेफिनेटली फाइंड द अपॉर्चुनिटी, डू नॉट वरी. Yes, a good headline can be your designation. Definitely give something more because designation तो आपका scroll करके LinkedIn पे भी दिख जाएगा, but if you can share something more, it will be beneficial. See, Anand ji, it is practically not possible for me to review your LinkedIn profile. इतना नहीं हो पाएगा. But I would suggest update your profile and everything, and then let's see how it goes. Cold emailing, messaging, yes, of course. Uh, चैट जीपीटी से बनाए हुए आई एम नॉट वेरी श्योर. यू विल हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर कि वो एटीएस फ्रेंडली हो. One problem is that when I select open to work, company know that asking about why you're looking for new job, what I have to do. When you click on open to work, there is an option, I think so because मैंने देखा है वो चीज. तो particularly settings में कहाँ है वो देखना पड़ेगा. You can hide it from everyone and make it only visible to the hiring managers. तो वो कर सकते हैं आप. um, हाँ, आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे. इफ यू आर आस्किंग कि आपको करंट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को नहीं दिखाना है, इट इज फाइन. ओपन टू वर्क करने से विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ तो जाती है, दैट इज फॉर श्योर. सो इन सेटिंग्स डेफिनेटली गो एंड turn that toggle on. And there is also a toggle where your current organization people will not be able to see that open to work thing. बिकॉज अगर आपने अपना करंट ऑर्गेनाइजेशन लिंक्डइन पर अपडेट करके रखा है एज करंट वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, सो people who also have tagged the same organization as their current organization will not be able to see it. Google, seriously.
Like if you have some basic doubts, please Google and chat, like do chat GPT also. It's fine. ठीक है. It's already 9:31. थैंक यू सो मच एवरीवन, आपके वैल्यूबल टाइम के लिए और इतने सारे क्वेश्चंस के लिए. डेफिनेटली a 90-minute session will not be enough for all of it, but before everyone leaves, I would just want to ask कि क्या सेशन आपको सही में अच्छा लगा है, आपने कुछ सीखा है, आज कुछ नया आपको सीखने को मिला है. Everyone is writing yes, and I'm so thankful. Thank you so much. और all the best to everyone. Thank you everyone और सबको all the best. Do great in your careers and definitely use a lot of platforms. अपने आप प्रोफाइल को बेटर करते चले जाइए and we will definitely connect again very very soon. Whatever your feedback is, please connect to the support team. और अगर आपको ऐसे सेशंस या फिर आपको जो रिसोर्सेज है, पीपीटी है, रेज्यूमे है, ये चाहिए या लिंक्डइन पर सेशन चाहिए, डेफिनेटली connect with the support team. They will be able to help you out better. So thank you so much everyone and good night. Take care. Enjoy the rest of the weekend. Enjoy your Sunday and do great in your careers. Thank you. Thank you. Bye bye. Good night. I'm ending the recording right now. Thank you.